अखिलेश जी साइड में आ जाओ। अखिलेश यार, अखिलेश सर हम लोग यहाँ पे पीछे है। और दूसरा इज द आर्टिस्ट पोस्टर, जो कलाकार है जिन्होंने गाया है, लिखा है, प्रोड्यूस किया है, कंपोज किया है, सिद्धार्थ सर। लेडीज डू द ऑनर्स। सुपर एक्सेलेंट। let's do this side. Done, guys? Thank you. Sanobar, over to you. सो पहले हम वीडियो प्ले करते हैं, तो एक बार सब देख लेंगे। एक मिनट, रकीब भाई आते हैं। फाइनली रकीब भाई, थैंक यू। रकीब भाई अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। बेटा नीचे बैठिए, मोबाइल जरा। एक मिनट और रुकिए। बेटा मोबाइल लेके बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। हाँ मैंने जब हाँ बोला तो मेरे दोस्त ही थे अजीज, 20 साल से जानता हूँ। He's been saying I want to cast you in a film, I want to cast you in a film. फिल्म दूर की बात रही, but I think we started with the music video and he had a certain vision for me. I said I imagine you as a rock star like the way you were 20 years ago when you were choreographing me as an actor. So the roles have changed. Now he's become a director and I'm the actor. But I have to say this: Sanobar has not taken any credit for the story. So the initial story was Sanobar's, and the song was very good. And I asked, okay, Sanobar, the Siddharth has done a great job. What about the story? And I said, okay, this is our story. Aziz and they both fleshed out a story, and then Maruk developed all the details and made sure it looked good. But more importantly, I have to say this: that Siddharth sir, I have worked with a lot of music labels. I have to say in the last few years, 2 years, 3 years. And the respect that he gives to his artists, to his musicians, to his singers, is just incredible, and nobody does this. Especially having a poster which has the musicians and giving credit to the lyricist. ये कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। और जिस तरीके से जिस मुकाम पर वो आ चुके हैं और जिस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं, whether it's hoardings, even booking a studio just to show a music video. I don't think any music video has got this kind of a launch. I am so grateful for your vision, sir, and for really putting your money where your heart is. So I really think that it's a very rare combination to have somebody who's so passionate about music but also passionate about promoting his artist. हम जो पर्दे पे दिखते हैं वही दिखते हैं, but आप बहुत concerned है कि जो लेखक है, जिसने लिखा है, जिसने गाया है, उनको भी इतना prominence देते हैं. And I have to say that in his office, the teamwork and the energy and the vibe is just awesome. Firstly, it's the most beautiful office I've seen. It's got great taste. So when I went to the office, I said, अगर इंसान के पास इतनी अच्छी taste है to create an office in a world like that, I'm sure the kind of work that he does also will be interesting. And then I saw some of the music videos and I was blown away by the consistency. More importantly, when I saw him work, Siddharth sir is somebody who gives the artist a free hand. He believes in you, he trusts in you, he doesn't question you. He will guide you in a certain way and he'll want a certain result. But at the end of the day, there's a certain amount of carte blanche that he gives you. It gives you a kind of open window to say, okay, do sketch, paint the colors you want to. And he supports you like that. So it's really, really interesting because most people are interested in business. And I feel that the balance of business and art is very rare. And Siddharth is one of them. रवि सर, एक ग्रुप फोटो के लिए आ जाओ क्योंकि हो गया टाइम अपना 8:45 अब। एनवी सर, संदीप, सब लोग जो भी हैं यहाँ प्लीज नीचे आ जाइए। एली, नितिन नितिन जी, नितिन आजा पिक्चर। क्रिस्टल नाम के लिए वेट मत करो क्योंकि भूल गए तो फिर रह जाओगे। कम इनसाइड, कम इधर आ जा, इधर बीच में। एली बैठ जाओ यार। अरे उनको अखिलेश भाई, अखिलेश
आगे जाना पड़ेगा छोड़ो अभी क्यों जा रहे हो मैं रुकवा था कौशल भाई फोटो हो रहा है बताना। फोटो हो जाए तो बोलो भाई। अखिलेश बैठ जाओ हो गया मोबाइल। के नाम पे दवा है ये 1 मिनट हो वीडियो के लिए। होल्ड डाउन और स्टिल दादा जरा आप भी बैठ जाइए। बड़ा क्या बात हेड स्पेस संभालिए। आप लोग बैठ जाएंगे क्या मोबाइल एक्सक्यूज मी। आ रही है हाँ तू चला जा। लाइट इतना कम क्यों हुआ भाई? भाई लाइट ऑन करो। Who and Ruhi? अच्छा उनसे ना शर्लिन। Everyone has done a very fantastic job, you know, from Raja to Aziz to SK Music to Terence to Anjali. सबने इतना खूबसूरत काम किया है कि मतलब मुझे प्यार हो गया इस गाने से। और सच कहूँ अजीज़ ने बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से शूट किया है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, एडिट बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि टेरेंस खुद इतने अच्छे इंसान हैं तो उनके ऊपर जो इमोशन दिख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया है। और वादियाँ, कश्मीर की वादियाँ मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में और सब्जेक्ट को एनहांस कर देती है, तो ऑल ओवर फैंटास्टिक। And SK Music is getting better by every passing song. मुझे लगता है कि पिछले 3-4 महीने में ये तीसरा या चौथा ब्लॉकबस्टर है, तो उन्होंने सच कहे तो आग लगा रखी है। Yes. Thank you very much. मैं जैसे ही अंदर एंटर हुई दो आई वाज लेट आई एम रियली सॉरी बट थैंक गॉड गाना चल रहा था और आई डिड नॉट मिस एनीथिंग द एंटायर सॉन्ग वाज लुकिंग लाइक अ फ्यूचर फिल्म सो नाइसली शॉट एंड टेरेंस इज वी ऑल नो दैट हाउ अमेजिंग अ डांसर ही इज एंड उनको डायरेक्ट उन्होंने इतने ब्यूटीफुली किया है बाय कैचिंग एवरी मूवमेंट सो नाइसली एंड द ब्यूटी जो शूट की है मतलब कमाल किया या इट्स लव। आपको कुछ कहना है? मैं कह चुका हूं। सेकंड माय थॉट। टेरेंस इज एन एक्टर। मैंने वेरी ऑनेस्ट उनको पहली बार एक्ट करते हुए देखा और उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंटली अपने आप को लेकर आए हैं वो। और विद दिस सॉन्ग उन्होंने एक्चुअली बताया है कि ये सुपर 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 मल्टी टैलेंट। कभी वो प्रूव भी हो गया। और अलीजा खान ने भी काम किया है मतलब कमाल कर दिया है। तो सबका बहुत पुराने दोस्त हैं या सबका ओवरऑल बहुत अमेजिंग आया। हैप्पी बर्थडे टेरेंस। अरे फेम भरने आ जाते हो कहाँ तो भाई सेंटर पे आइए। सारा नेक्स्ट सारा मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज म्यूजिक वीडियोस जनरली यूट्यूब और टीवी पे देखते हैं, लेकिन सिद्धार्थ सर का दिल बहुत बड़ा है कि उन्होंने ये किया एंड इट फील्स लाइक यू नो इट्स जस्ट सरियल, बिकॉज वो छोटे फ़ोन पे देखना और टीवी पे देखना और एक बड़े पर्दे पर देखना, सिल्वर स्क्रीन पे देखना एक बहुत अलग बात होती है। आई फील ओवरवेल्म्ड और
I just want to thank everybody. I want to thank बहुत Aziz. ही हॉट लग रहे हैं आपकी केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग लग रही है और कमाल कर गया Thank you. ये सब अजीज की बदौलत है. Just because everyone is talking about that nobody knew that you can act because you were always a choreographer. I said no. Terence, I know, was always an actor. Look camera. For the last 20 years, I've always seen him as an actor because when I met him first also, he was a model, an actor, so I knew this was going to be a piece of cake for him. So मैंने जो कुछ भी किया, I learned from him. 20 years back, he was directing me. Yes. मैं वहीं से सीखकर I gave it back to him. It's just lovely. I mean, to have a director who believes in you, that's the first thing, you know, as an actor. Because I don't know of any actor-director combination that has given hits that don't have that kind of love and respect and trust for each other. So thank you, Aziz. He should. The dead girl is going to come back. So we are working on that now. We have to ask Siddharth to make another track for that. Hello, thank you. यस टू सारा Hello, Sara. Desi Sara, Videsi Sara. Yeah, I just want to say thank you everyone for coming. It was so amazing to see you on screen and to work with Terence and Aziz, Sir, Siddharth, Sir. It was just such an amazing experience, and I'm really, really excited to come. Yeah, thank you. All the very best to you. Thank you. Center look. अरे कैमरा लो. यहाँ पे कैमरा यहाँ पे. ये कैमरा लो. लेकिन देख So I'll be very excited if मेरा Big Boss हमारा पार्टिसिपेट वापस करने के लिए I'll be really excited. खिलाड़ी हमेशा ही बहुत अमेजिंग कंटेस्टेंट्स के साथ आता है बहुत ही एकदम कॉन्सेंट्रेट बहुत ग्रेट है सो लेट्स सी इस बार भी कुछ अच्छे से होगा के साथ हम लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं Very. I'm so happy that she came and she did it. I have to And she knows that songs are finished. Next song. वैसे मेरे 3 गाने अभी चीज़ होने वाले हैं Should we do it here? Okay. मुझे बहुत खुशी हुई जब अजीज़ और सनोबर ने मुझे अप्रोच किया ये गाने के लिए. इट्स बाय सिद्धार्थ कश्यप हु ओन्स द म्यूज़िक लेबल. ही इज़ द म्यूज़िक कंपोज़र. जो गाने के अल्फाज है, जो सिंगर्स है सुमेदा, इरफान एंड राजा, दे हैव जस्ट डन अ फैंटास्टिक जॉब. तो जब मैंने गाना सुना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग. जब भी कोई मुझे म्यूज़िक वीडियो के लिए अप्रोच करता है, सर इफ द सॉन्ग इज़ ग्रेट आई विल गो फुल आउट. मैंने गाना सुना है, सर दिस इज़ अ हिट सॉन्ग, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. और जब सनोबर ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया, it was just so beautiful. I said I have to say yes. And then Aziz said we're shooting in Kashmir. I said this cannot be better than that because last year मैं गया था कश्मीर, but I had gone to all the touristy places. But उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत जगह ली, अनंतनाग, which is a little away from श्रीनगर. और जो शूटिंग हमने करी वहाँ पर, इट्स सो ब्यूटीफुल. आई थिंक एक ज़माना हुआ करता था 70s और 80s में, जब हम देखते थे कश्मीर वॉज सो एक्सप्लोर्ड.
But afterwards, after the 80s, 90s, it went down for various reasons, political reasons. And now I feel everybody, after seeing our song, will fall in love with Kashmir. मैं बहुत खुश हूँ as an actor, you know, you've seen me as a choreographer, judge, but एक actor के किरदार में कई बार मैंने ऐसे music videos किए हैं. But this is one look where Aziz, the director, was very clear कि Terence, I have seen you as a rock star because हमारी दोस्ती 20 साल पहले जाती है. And I want that same rock star look, जब आपके बाल लंबे थे and all that. So he was very clear कि इसका एक vision है. And I'm so happy उसका विजन सक्सेसफुल हुआ. जब मैंने भी गाना देखा, वाओ, इट लुक्स रियली गुड, इट लुक्स अमेजिंग. और मेरे को-स्टार जो है सारा, वो बहुत ही अच्छी डांसर है. और हाल ही हम मिले थे एंड देन यू नो अजीज़ कास्ट था. सो इट वाज जस्ट परफेक्ट. कभी कभी ना बिना ज़्यादा सोचे सब चीज़ें अपने आप आ जाती है. देयर इज समथिंग कॉल्ड सेरेंडिपिटी. दैट्स व्हाट हैपेंड टू दिस सॉन्ग. मेहरबान इज जस्ट लव. गाना इतना मधुर है कि यू नो यू जस्ट गेट ट्रांसपोर्टेड. यू जस्ट फील लाइक लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. अगर आप ये यू नो ईयरपॉड्स डाल के सुने, या इफ़ यू इन द कार एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, इट इज़ सच अ सूदिंग सॉन्ग. इट काम्स यू डाउन. एक गाना जो आपको ऑलवेज काम करता है. जनरली आप गाने जो अभी हम सुन रहे हैं वो हब बेवफाई के हैं, दिल किसी ने तोड़ा है. बट आई थिंक इट्स सच अ रिफ्रेशिंग सॉन्ग जहाँ पे एक स्टोरी भी इतनी खूबसूरत है. जहाँ पे एक लड़का जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जिमी, जिसकी गर्लफ्रेंड यू नो आत्महत्या कर लेती है फॉर सम रीज़न, और वो डिप्रेशन में चला जाता है. फिर एक दूसरी लड़की उसको यू नो फिर से वो अरमान जगा देती है एंड शी ब्रिंग्स हिम बैक यू नो इनटू हिज फील्ड. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बट समटाइम्स यू विल लेट गो to really for love to find you. That's the beautiful catchline of Meherban. Meherban का catchline है, you have to let go in love so that love can find you, and that's the you know the essence of all. You know, when you chase certain things, it doesn't happen. But when you let go, then the beauty of love just finds you. So the essence of the song, जो shoot किया गया है, जो कहानी का मुद्दा है, सब इतना प्यारा है कि I just feel very confident about the song. या बट वो डांस जो रील्स पे होता है वो बहुत अलग होता है. वो 15 सेकंड के लिए होता है. यहाँ पर काफ़ी हद तक यू नो गाने की जो समझ है, अल्फाज है, जो बोल है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है. एंड इट्स ऑल्सो आई वॉज विद सारा, आई वॉज डूइंग मोर ऑफ यू नो बॉलरूम, यू नो नॉट बॉलरूम बट रादर कपल डांसिंग. और वहाँ पे भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी ज़्यादा लिफ्ट्स थे. बहुत मज़े की बात थी. कश्मीर का एक ब्रिज था जो एक टूटा फूटा हुआ था, और अजीज़ ने कहा कि मुझे बर्फ़ में चाहिए और मुझे झील के पास चाहिए. और वो जो डांस है वो इतना डिफ़िकल्ट है, पार्टनर वर्क है, और वो ब्रिज हिल रहा है. और एक तरफ अगर आप देखोगे तो इफ़ यू जूम इन, एक तरफ वो जो ब्रिज का जो बोलते हैं ना रेलिंग, वो है ही नहीं. सो फॉर द कैमरा का इट वॉज वेरी गुड बिकॉज उसको क्लियर एक्सेस मिल गया. लेकिन हमारी आई वुड से फटी हुई थी बिकॉज अगर मैंने एक भूल कर ली तो वी आर डाउन इन द रिवर यू नो. एंड वो पानी बहुत बर्फीला और सर्द भी काफ़ी थी. सो दे काफ़ी फनी सिचुएशंस थे. बट व्हेन यू सी दिस सॉन्ग इट जस्ट लुक्स स्टनिंग एंड सरियल. यू नो हम मज़े की बात यह है कि जब भी हम बर्फीले जगह पे जाते तो हीरोइन साड़ी में होती है, पतली सी साड़ी, एंड यू नो शी इज़ bare body most of the time, in the sense that she is showing her body more in a साड़ी और in a dress, a slinky dress. और हीरो जो होता है वो कपड़े डाले, जैकेट डाले, ग्लव्स डाले. बट इस बारी अजीज़ ने कहा था कि नहीं, मैं आपको भी आपकी बॉडी दिखानी पड़ेगी. सो आई वॉज द हीरो वॉज इक्वली bare body than the heroine. So it was an equal match. और हम काँप रहे थे as we were shooting. It was really difficult sometimes, you know, वो नाक से पानी निकल रहा था because and eyes, हम रो भी रहे थे, not because of anything else, because जब इतनी ठंड होती है ना तो रोना चालू होता है. तो रोमांटिक सीन कर रहे हैं लेकिन आंसू निकल रहे हैं. So it was quite an experience. I don't know. अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है सिंगिंग और एक्टिंग में. डांसिंग मैं एटलीस्ट 20 ईयर्स से कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि सिंगिंग अभी शुरू हुआ है. तो आई वांट टू काइंड ऑफ यू नो रिलीज 2 more songs, डांस नंबर्स, होपफुली एक अलग जॉनर ऑफ म्यूजिक में, यू नो. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन एक्टिंग आई एम लुकिंग फॉर good offers, good roles. If there is somebody out there who can cast me in a meaningful role, doesn't matter how big or small, but meaningful role,
जो डायरेक्टर लगता है कि मैं ये रोल कर सकूं, दैट विल बी ग्रेट. यस सर. नो, आई थिंक यू हैव टू सरेंडर टू द डायरेक्टर. एंड अगर आप विश्वास नहीं कर सकते अपने डायरेक्टर को, देन डोंट डू द फिल्म और डोंट डू द रोल, बिकॉज यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट इन द डायरेक्टर. जो भी मैंने गाने किए हैं या छोटे छोटे फिल्म किए हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी, आई हैव ऑलवेज आस्क्ड हैव दैट फेथ इन द डायरेक्टर. क्योंकि अगर वो फेथ नहीं है स्क्रिप्ट में और डायरेक्टर में, देन यू नो यू डायरेक्टिंग योर सेल्फ, इट्स क्रेजी. आई मीन बिकॉज आई हैव बिन पर्दे के पीछे रहा हूँ कई सालों से, तो मुझे सेंस है कि ये नहीं चलेगा. तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि शायद मुझे थोड़ा कम करना चाहिए, बिकॉज यू नो इट विल नॉट वर्क, और शायद ये एक्सप्रेशन गलत है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कॉल ऑफ द डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर सेज नहीं मुझे आपका थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन चाहिए, यू हैव टू डू इट, बिकॉज इट्स हिज विजन एट द एंड ऑफ द डे. एंड एज एन एक्टर हमें सबमिट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो समटाइम्स यू हैव टू बी हम्बल इनफ, लाइक इवन दो आई नो मैनी थिंग्स, समटाइम्स आई शुड यूज दैट फॉर माई बेनिफिट, to know ki to help the director, not to go against the director. और कई सारी चीज़ें हुई हैं. बिकॉज फॉर एग्जांपल एक शॉट है जहाँ पे सारा का कॉफ़ी पी रही है और जो फ्रॉथ है वो इसके मुंह पे था. एवरी टाइम आई वाज गोइंग टू क्लीन द फ्रॉथ, यू कैन सी इन सम शॉट्स वो फ्रॉथ जो नाक पे था वो ड्रिप होके कॉफ़ी में गिर रहा था. सो यू नो आई हैड टू कॉन्स्टेंटली गो एंड यू नो पुट इट बैक ऑन हर नोज. सो देयर वर दीज वेरी फनी मोमेंट्स. एक रोमांटिक सीन था बर्फ़ में जहाँ पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं इंटेंसिटी के साथ, देखते देखते पानी से नाक से पानी निकल रहा है. सो इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग कि इतने रोमांटिक शॉट्स में. सो समटाइम्स आई वंडर हाउ डिड द यू नो यस्टरयर्स के एक्टर्स जो करते थे बर्फीले जगहों पे, कैसे वो हैंडल करते थे. बिकॉज देयर आर सम वेरी रियलिस्टिक इश्यूज जो होते हैं. आंखों से पानी आने निकला है, नॉट बिकॉज यू आर सैड, बट जस्ट इट्स सो कोल्ड दैट यू नो नाक पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है. सो देयर आर दिस वेरी फनी सिचुएशन दैट हैपेंड. एंड मैनी टाइम्स जो सारा है, शी इज़ ऑस्ट्रेलियन, तो उसको कई बार कुछ चीज़ों का पता नहीं था, तो वी टू जस्ट प्ले अ प्रैंक. अजीज़ जो है, नॉट मी सो मच, बट अजीज़ इज़ अ प्रैंकस्टर जो डायरेक्टर है. हर वक्त उसको कुछ ना कुछ मस्ती सूझे रहता है, तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली गाइडिंग हर रॉन्ग. So he was telling her, अच्छा ये ना गाने पर ना this is the emotion, and she is very innocent. She's like okay. Then I was seeing her reaction. I was like, Sarah, who told you to do this? He's saying he. So कई बार you know for fun, just to tease her, we used to kind of just confuse her. But she was lovely. She was very sporting. At the end of the day, she figured out that you know I have to kind of you know ask 2-3 people to be sure कि क्या sir बोल रहे सही है क्या नहीं. But there was some really cool. I think this is one of my most बहुत सारे शॉट्स थे 2 दिन में. जनरली दिस सॉन्ग लाइक दिस रिक्वायर्स 5 days. हमने 2 दिन में उड़ा दिए. एंड आई हैव टू से कि बहुत स्ट्रेस था इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एवरीथिंग डन, बट द ब्यूटी इज़ दैट द सेट का जो माहौल था बहुत फ्रेंडली था. हम इतने हंस रहे थे एट द सेम टाइम गेटिंग द वर्क डन. सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. आई थिंक I'll prefer doing songs that are story, जिसमें स्टोरी है. जैसे मेरा पहला जो म्यूज़िक वीडियो था was मैं अकेला एक सिंगल पेरेंट हूँ, सिंगल बाप हूँ और मेरी बच्ची मेरे अरमान पूरे करती हैं. सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. वहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, एक्टिंग का स्कोप होना चाहिए, देन इट मेक्स मोर सेंस फॉर मी टू बी इन अ वीडियो. सो आई प्रिफर यू नो कि 3 या 4 मिनट में आप एक पूरी कहानी दिखा दें, ताकि वो स्कोप मिल जाए एज एन एक्टर ऑल्सो फॉर मी टू काइंड ऑफ शो माई टैलेंट. And I just enjoy doing this because dancing तो आता ही है, and acting is something that I've done many years in my school, college, और कुछ हद तक मैंने किया है, but I didn't follow it because dancing was more important for me. But I'm very happy to get back to acting and I'm very happy to be here. हमारा जो गाना है मेहरबां वो कल रिलीज़ हो रहा है 8 तारीख को, and it is a beautiful song. विजुअली बहुत ब्यूटीफुल, ऑडियो वाइज भी बहुत सुकून मिलेगा देखने के लिए. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दिस सॉन्ग. एंड although I say so myself, my director keeps saying me, this is you've never looked as good as in this song. So I'm hoping people will like this new look of mine. And बस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और उम्मीद यही है कि आप सबको पसंद आए. थैंक यू. थैंक यू.
और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आज मैं बहुत एक्साइटेड था। सबसे पहले मैं इसलिए पहुँच गया यहाँ पर क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे कि 7 बजे शुरू हो जाएगा और मैं सबसे पहले से पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। और यस, मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा और डेफिनेटली डांसर के साथ साथ एक्टर भी बहुत ही अमेजिंग है और बहुत एक्साइटेड हूँ इस सॉन्ग को लेकर क्योंकि पूरा कश्मीर में शूट हुआ है और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है इसमें और लुक भी बहुत अमेजिंग है। तो मेरा बहुत दिल है उनसे डांस टिप्स लेने का और लेकिन हाँ, हम लोग कभी इस बारे में बात ही नहीं हो पाती। हमारी सिर्फ फिटनेस की बात होती है कि ये खाना है, ये प्रोटीन पीने हैं या फिर वर्कआउट ये होना चाहिए तो वैसा। लेकिन यस, मैंने को बोला था कि मुझे डेफिनेटली उनसे डांस सीखना चाहिए। और गाने की बात करें, आपको सारा गान का एक गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ, हाल ही में सारा गाने पॉपुलर भी गए। उनके साथ भी आने वाले समय में आपको फिर से वो गाना या फिर सारा के साथ मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी जैसे अभी फिलहाल तो कोई भी ऐसा नहीं है और यस, हम बहुत जल्दी एक और म्यूजिक वीडियो करेंगे। आप कब तक हमें अभी एक्शन प्लान हो रहा है तो बस एंड अपार्ट फ्रॉम मेरा भी जो रिसेंट शो चल रहा है वो चल रहा है धर्म योद्धा करो स्टोरी सब काफ़ी यूनिक शो है। उसके बारे में कुछ बता सकते हो? उसके बारे में बहुत यूनिक शो है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम गरुड़ जो है उसकी कहानी माइथोलॉजिकल है और माइथोलॉजिकल काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए करने को भी क्योंकि मैं पोस्ट में मैथो कर रहा हूँ। इस पर कहानी बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मैं सबको थैंक्स कहूँगा कि थैंक यू सो मच। हर शो की तरह हमें फिर से अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एक्चुअली। और मैं फर्स्ट टाइम मैथो कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम नेगेटिवली कर रहा हूँ। मेरी काफ़ी बेस्ट बहुत पसंद आ रहा है। फैजल ऑल्सो ही इज़ वेरी गुड डांसर। उससे मैं सेट पे टिप्स लेता हूँ डांस की। आने वाले समय में कोई रियलिटी शो में आप नजर आ सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस शो? अभी रियलिटी शो तो नहीं, लेकिन यस मैं मतलब डिफरेंट शोज़ में डेफिनेटली आपको होऊंगा क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली मुझे रियलिटी शो से थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैं बहुत कम रियलिटी शो करता हूँ। वो बहुत बिंदास है इस चीज़ में, सारा जा सकती है कुछ भी। यस, तो सारा में गट्स हैं बहुत कि वो बिग बॉस या फिर लॉकअप पूरा अटेंड कर सकती है। बट या मुझ में बिल्कुल नहीं, मैं बहुत डरता हूँ इन चीज़ों से। फॉर मी इस लाइक वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है मैथो और कॉस्ट्यूम ड्रामा कभी भी नहीं किया, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। पूरा दिन आपको इतना हैवी कॉस्ट्यूम और इतनी शुद्ध हिंदी जो बोलनी पड़ती है और डायलॉग्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो क्योंकि इतने सालों से मैंने बहुत नॉर्मल शोज़ किए हैं और सडनली ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है करना। डेफिनेटली यस। अगर आपको चांस मिला तो किस तरह के सॉन्ग या किसके साथ करना आप पसंद करोगे? डेफिनेटली मैं बहुत ही मैं एक्साइटेड रहता हूँ म्यूज़िक वीडियोस के लिए क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं और मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब लोग सारा के साथ ही मुझे कास्ट करते हैं, तो मैं करूँ क्या? ओके 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 ओके। Yes. Hi guys. Jesus Christ, look at him, yaar. Have you ever look at that? It is a Jesus Christ who sins. I have to say, Father, forgive me for I have sinned. All right. I really want to wish him all the very best. I think Terry sir has been amazing at everything that he does. So I am really hoping. यहाँ पे भी हाँ जी. Terry sir has been amazing at what he does. So I really hope this sort of sees the stars and sees everything in abundance as well. So yeah. Yeah. What are friends for यार? अगर हम दोस्त कहते हैं कि मेरा मानना ही है दोस्ती वही होती है कि आप अपने दोस्त के लिए खड़े रहें and whatever they do, I will always be that for my friends, for people who've been there. Terry sir has been with me through so many things, so I will always be there no matter what. So yeah.
I still haven't watched the video. No, I haven't. Absolutely, absolutely. हाँ जी. मेरे मित्र उसमें हर साल रहते हैं, रोहित सर. मैं उनके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ हर साल उनको देखने के लिए. आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक विद व्हाट ही डज. बट इस साल निशांत है. निशांत इज़ देयर, तुषार इज़ देयर, हु एल्स इज़ देयर? मैंने सुना है श्रुति इज़ देयर. So I think a couple of friends again this year. So I'm hoping that this one's going to be a banger as well. And what do you want to say about let's talk about your work project कार्टल के बाद कार्टल में काफी इंटरव्यू आपने किया था, अच्छा लगा था. People are waiting for the second season. Would you like to give details about it? I can't give you any details on it. मैं मर जाऊंगा. मुझे मार दिया जाएगा. लेकिन जो भी है, I'm hoping and praying good things coming our way. So yeah, when the time is right, I'll definitely be able to share more with you guys. Thank you. Yes, ma'am, we can do the pictures. और कुछ? Thank you. Thank you. Watch this lady. Right. Thank you. I'm very happy because जो मेहरबा के पीछे एक थॉट था इनिशियली व्हेन ये बनाए थे, उसके बाद जैसे ये गाना बना, उसके बाद ये जैसे विजुअल्स बन के आए जो आप सब देखेंगे आज, इट इज़ सो ब्यूटीफुल. एंड डेफिनेटली टेरेंस ने काफ़ी वीडियोस में फीचर भी किए हैं, बट एक्टिंग से पहले वो हमारे दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं. एंड मैं हमेशा बोलती थी कि nobody's explored you in your true potential, whether it's dancing or featured you in a video like that. So I always wanted to do something like that. But then of course Siddharth, Aziz, they all had a vision towards this और बहुत अच्छे से उन्होंने showcase किया है. And आप सब देखेंगे and I'm sure सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. So SK Music Work, though is a music company, मगर I would like to say we operate like a boutique label, जहाँ पर हम unique voices, unique concepts, unique talent search करते रहते हैं और हर टाइम एक कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी तरीके से वीडियो के दौर से या फिर ऑडियो के दौर से. तो आप देखोगे हमारे हर एक गाने एक दूसरे से बहुत अलग है, विजुअल्स भी बहुत अलग है. तो सारा कम टेरेंस सर को भी बुला लो. टेरेंस कम Finally, the team is here. There's Sumita and this one. No, they are on show busy. Yes sir. And Rakib bhai. रकीब भाई जी प्लीज कम. जो प्रैंक किया आप लोगों ने. छोटी बच्चे हो क्या? रोलिंग. चलिए, थैंक यू. इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग और कंपोजिशन पे तो वो क्या बैंक में बहुत सारी थी तो हमें टाइम ही नहीं मिला बीच में 1-2 साल रिलीज़ करने का, तो अभी हम फटाफट करते ही जा रहे हैं. सो दिस वन इज़ अ रोमांटिक सॉन्ग. इसके पहले जो किया था इट वाज अ डांस नंबर एंड मे बी इसके बाद में हम जो कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो अ डांस नंबर. बट ये सॉन्ग बहुत स्पेशल है बिकॉज इसमें हमने 2 जॉनर ऑफ म्यूज़िक को फ्यूज़ करके कोशिश की है एंड डिफरेंट वॉइसेस एक्सप्लोर किए. सुमेधा, इरफान, राजा हैं. इसे रकीब भाई ने बहुत अच्छा लिखा एंड द बेस्ट पार्ट इज़ व्हेन पेरेंट्स हर्ड द सॉन्ग सो ही लाइक्ड इट सो मच देन ही वांटेड
कि इसके अंदर कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे हम वो कंटेम्प्रेरी डांस को भी विद स्टोरी के साथ में करें। तो अजीज़ केम अप विद अ वेरी नाइस थॉट स्टोरी वो करने के लिए, एंड हमने कश्मीर में शूट किया, एंड आई होप अभी आप लोग वीडियो देखेंगे तो यू गोना लाइक इट और लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। एक मिनट आवाज़ जी। ही इज़ तो इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि ही इज़ लुकिंग फैब, और वीडियो में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे भी अच्छे ही लगते हैं, पर एंड सारा इज़ डन वेरी वेल। जो मूव्स हैं डांस के, एंड उसके साथ में इट इज़ नॉट अ डांस वीडियो, एक कहानी है, और जिस तरीके से अजीज़ ने इसे बनाया है एक फुल स्टोरी टेलिंग है। सो आई थिंक कि इसके अंदर में ये जब वीडियो लोग देखेंगे तो दे विल सी द अदर पार्ट ऑफ टेरेंस, जो कि ये खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि हमेशा इन्हें कोरियोग्राफर डांसर वैसे ही देखे जाते हैं, बट इज़ अ वेरी सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट। और इस वीडियो के अंदर में जो कहानी है वो कहानी भी इनके इर्द गिर्द ही घूमती है, एंड इज़ एक्टेड सो वेल। और हम हमेशा सोचते हैं एसके म्यूज़िक वर्क्स में कि कोई चीज़ ऐसी बनाए जिसे बड़े पर्दे पे देखें तो अच्छा लगे। अगर बड़े पे अच्छा लग रहा है तो छोटी मोबाइल स्क्रीन पे तो अच्छा ही दिखने वाला है। या ये गाना रकीब भाई के साथ में हमने 2017 में ये गाना हमने किया था, एंड उसको अनप्लग्ड जैसा हमने कुछ बनाया था जब हमने आज चैनल शुरू की थी। तो अब रकीब भाई और हमने इस थॉट के ऊपर में डिस्कस किया था, पर इसके बीच में वो जो कवाली वाला पार्ट है जो अब आप सुनेंगे देखेंगे, सो दैट एलिमेंट वाज मिसिंग। सो हम जब अभी वापस करने बैठे तब रकीब भाई बीच में पुष्पा के लिए काफ़ी बिजी थे। फिर उसके बाद मैंने उन्हें ट्यून भेजी, एंड ही केम अप विद अ नाइस हुक लाइन, और उसी ने इस गाने को ओवरऑल डायमेंशन इसका चेंज किया। थैंक यू। मैं तो चाहता हूँ कि हर बार की तरह ये गाना भी अच्छा रहे, और कोशिश यही है। बस इस बार थोड़ा सा चेंज ये देखने को मिला है, बिकॉज मैं टू बी ऑनेस्ट गाना हमारा काम है, लेकिन इस बार गाने से ज़्यादा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करा, बिकॉज हम शुरू से साथ में हैं, तो एडिट वगैरह पे देखना, और मेरा भाई जो हॉलीवुड लुक दे रहा है वो कमाल है, और अजीज़ भाई ने इतनी तगड़ी मेहनत की है। और हम लोग सब यही ऑफिस में भी यही बात कर रहे थे कि इस बार का ये जो वीडियो है ये मुझे नहीं पता कि हमारी सिंगिंग कितनी लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, म्यूज़िक इज़ गुड, बट इस बार वीडियो बहुत लोगों को लुभाने वाला है बिकॉज ऑफ टेरेंस, एंड इंशाल्लाह गाना भी आप लोगों को पसंद आए। हम लोग हर साल कोशिश करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। तो मैं मेरा ही पार्ट गा देता हूँ बिकॉज दो लोग आए नहीं है, या उनका आप गा दे। नहीं आप सबके पार्ट गा देंगे। सो मेहरबानी तेरी तू फसाना मेरा, तू कहानी मेरी, मेहरबान मेहरबान मेहरबानी तेरी। ये सिमटी सिमटी वफा से लिपटी तेरी नजर की जो प्यास है कि रफ्ता रफ्ता दिले गिरफ्ता हुआ है दिल का जो हाल है तेरे पास है। वो कलम इन्हीं के पास थी।